So hi everyone, welcome back to my channel, and for today I will be talking about important question answers for constitutional values and fundamental duties. अगर आपको इस तीनों यूनिट्स के जो आपके पेपर में है, अगर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. Let's begin with the video now, that is important question answers of constitutional values and fundamental duties. So the first unit we have is the unit 1, that is the Constitution of India and introduction. So first question we have is here, that is discuss the Constitution of India as a federal and a republic. So because ये आपका पेपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए. और इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी. सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होते हैं जो कि एज अ सिटीजन आपको राइट्स मिलते हैं, आपको अपना हक मिलता है. एंड देन यू हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज. सो जो आपको राइट्स मिले हैं उसके लिए आपकी खुद भी अपनी ड्यूटीज है खुद. सो दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज. So now we have the first question to discuss the Constitution of India as a federal and a republic. So जो Constitution of India है ये यूनिक ब्लेंड है ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर. इंडिया जो एक फेडरल कंट्री है, in that it has a division of power between the central government and the state government. The Indian Constitution जो वो प्रोवाइड करता है थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी which is responsible for interpreting the constitution, and वो resolve करती है disputes between the center and the state government, which is generally you can see in India because there are many issues here, many disputes between the center and the state government. At the same time, India is also a republic, which means that is sovereign state that is not ruled by a monarch. तो यहाँ पे कोई monarch नहीं है या फिर कोई ऐसा king नहीं है. जो president of India है वो head of the state है, and the prime minister of India is the head of the government. इस लाइन को याद रखना and do write this line in the exam. India has India also has a parliamentary form of government where जो members of parliament है वो elect होते हैं by the people. Next question is explain the basic feature of Indian Constitution. So basic feature क्या है एक Indian Constitution की? So the basic features are sovereign, democratic and republic nature of Indian state. So federal system with a strong central government. Next we have is the fundamental rights and duties for the citizens. ये basic feature है Indian Constitution के. Like the first we have the sovereign, democratic and republic nature of Indian state. Second we have is the federal system with a strong central government. Third we have the fundamental right and duties of citizens. ऑल्सो रिमेंबर ये आपको पेपर में ऐसे सिर्फ नेम नहीं लिखने हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करना है. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए पूरी इसकी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. देन यू हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. देन यू हैव द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. एंड नेक्स्ट यू हैव द सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन. देन यू हैव इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. एंड अगर आपको वीडियो चाहिए जैसे मैंने आपको बोला एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो एक तो कमेंट से बताओगे, बट दूसरा आपको वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट करना है, दैट इज ऑफ 100 लाइक्स. सो डू लाइक द वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज critically analyze the secularism in India in reference with सर्वधर्म समभाव. सो ये आपको एनालाइज करना है सेकुलरिज्म इन इंडिया. सो जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म इन इंडिया का, ये एक एनरिच्ड enshrined है in the constitution and is considered to be one of the fundamental features. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल द सिटीजन्स, एंड जो स्टेट है वो एक्सपेक्ट करती है टू बी न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन. जो कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म समभाव, ये बेस्ड है ऑन द आइडिया ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, और एक कंसिस्टेंट है विद द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म. हाउएवर जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, उसका एक सब्जेक्ट है हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड कंट्रोवर्सी. क्रिटिक्स जनरली आर्ग्यू करते हैं कि जो स्टेट है हैज नॉट ऑलवेज बीन न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन एंड ऑफन गिवन प्रेफरेंस और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सर्टेन रिलीजन्स ओवर अदर्स. सो देयर आर टाइम्स कि जब जो है रिलीजन को जो है कुछ रिलीजन्स को ज्यादा पावर मिल जाती है, कुछ रिलीजन्स को ज्यादा हक मिल जाता है एज कम्पेयर टू द अदर रिलीजन, जो कि नहीं करना चाहिए, बट क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता है. और ये रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसा होता है. जो इशू है द इशू ऑफ रिलीजियस कन्वर्सेशंस conversions. So जो issue है religious conversions का, for instance, has been contentious issue in India. So because होता है कि कई बार forced होता है कि forced religion जो change करा दिया जाता है, हिंदूज का मुस्लिम में, मुस्लिम का हिंदुओं में, और there are time कि कुछ लोग जो अपने आप भी करते हैं. So that is good कि जो अपने आप करते हैं, but जो forcefully होता है so that is not good. एट द सेम टाइम जो सपोर्टर्स है सेकुलरिज्म की वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी. जो कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म समभाव का, ये एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह देखा जाता है ताकि वो प्रमोट कर सकता है
understanding and tolerance between the different religions in India. Next we have is the next unit, that is constitutional values. So here is the first important question. Define social, political and economic justice in Indian Constitution. So हमारे को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करते हैं 3 टाइप्स ऑफ जस्टिसेस, जो कि मैंने आपको बताया, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. सो जो सोशल जस्टिस है वो रेफर करता है टू द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइक ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि होता है एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है द राइट टू वोट टू ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और जेंडर. इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में अगर हम देखें तो वो रेफर करता है टू अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फॉर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर and seeks to promote a more equitable distribution of wealth and resources. Next we have is briefly explain liberty, thought, expression, faith, worship as a fundamental right. So आपको इनको briefly explain करना है. याद रखना कि पेपर में तो आपको बहुत अच्छे से explain करना है. Here I am just explaining it briefly. Liberty का मतलब होता है एक टाइप से freedom. Then you have the thought. Thought का मतलब होता है कि आपके अपने विचार और आपके अपने like words. Expression का मतलब होता है कि अपने words को अच्छे से express करना. फेथ मतलब होता है कि किसी के ऊपर बिलीव करना. एंड वर्शिप का मतलब होता है टाइप ऑफ बिलीफ ओनली वर्शिप, बट टाइप ऑफ कि आपको उसको गॉड की तरह मान लेना. सो ये होते हैं कुछ एज अ फंडामेंटल राइट के हिसाब से आपको बताना है. सो लिबर्टी इज द राइट टू फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच एंड एसोसिएशन. थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है वो राइट टू एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेट वंस ओपिनियन, बिलीफ एंड आइडियाज. देन यू हैव द फेथ एंड वर्शिप, जो कि राइट टू प्रैक्टिस है, प्रोपोगेट है एंड प्रोफेस any religion or belief. So ये जो fundamental rights है वो enshrined है in the Indian Constitution under Article 19. ये बात याद रखना, Article 19 में fundamental rights के बारे में बता रखा है, जो कि essential है for the preservation of democracy, pluralism and individual freedom. Next question we have is what is equality? Explain equality before law mentioned under Article 14. So equality क्या है? So equality जो है ये एक state है जिसमें equal status है, rights है and opportunities है. ये इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14, जो कि गारंटी करता है जो राइट टू इक्वालिटी है बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विच मीन्स लाइक दिस मीन्स दैट जो लॉ अप्लाई करते हैं इक्वली टू ऑल द पर्सन रिगार्डलेस कि उनकी कौन सी कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर है, रेस है, इकोनॉमिक स्टेटस है. बट आपको जो एक लॉ है वो सबके ऊपर इक्वल है. ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम्स है उनके लिए अलग लॉ होगा, जो हिंदूज है उनके लिए अलग लॉ होगा, जो अपर क्लास के लिए उनका अलग लॉ होगा कि मतलब वो किसी को भी मार सकते हैं, और जो लोअर क्लास के है वो ऐसा है कि अगर उन्होंने किसी को टच भी कर दिया तो वो जेल में चलेंगे. तो ऐसा नहीं है. सो लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल है. सो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है बिफोर लॉ इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अ जस्ट एंड फेयर लीगल सिस्टम, एंड वो इंश्योर करता है दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ. देन यू हैव टू डिस्क्राइब द फ्रेटर्निटी, लाइक फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज फ्रेटर्निटी. सो फ्रेटर्निटी सबसे पहले आपको बताना चाहिए क्या होता है. सो फ्रेटर्निटी इज वन ऑफ द कोर वैल्यू जो कि एनश्राइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑल्सो ये जितनी बार मैंने वर्ड यूज किया है एनश्राइंड, अपने पेपर में एनश्राइंड वर्ड यूज करना, जिससे आप जो है एक यूनिकनेस अपने पेपर में अपने पेपर को दे पाओगे. सो फ्रेटर्निटी जो है ये वन ऑफ द कोर वैल्यू है एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल. लाइक वो उसका वर्ड जो है फ्रेटर्निटी वर्ड जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलेगा, और वी कैन से इन प्रीएम्बल. सो इट रेफर्स टू द स्पिरिट of brotherhood and a sense of unity among all the citizens of India. Fraternity जो emphasize करते हैं importance of mutual respect, understanding and harmony among different communities, and promote करते हैं एक sense of communication, like एक sense of common purpose and collective responsibility towards the nation. So जो concept of fraternity है ये closely linked है with the idea of national integration and social cohesion. I don't know cohesion, इसको ना वर्ड तो पढ़ा हुआ बट याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसे अभी. And is essential for the development of a strong and inclusive society. Next पे आ जाते हैं, that is unit 3 now. So this is the last unit. So we will do this one and then we will end this video here only. Also अगर आपको explanation video चाहिए, already I told you like this video, the like target is of 100 likes and also do let me know in the comments. But video आपको तभी provide होगी जब आपका like target जो है वो complete हो जाएगा. So let's begin with the video now, that is unit 3 fundamental duties.
So fundamental duties में the first question is explain the concept of rights and duties consciousness in ancient India. So आपको rights and duties का एक like concept के बारे में explain कर रहा है. So the concept of rights and duties का consciousness has a long history in ancient India, where it is an integral part of the social and political philosophy of the time. So the ancient Indian scriptures, texts, all such as the Vedas, Upanishads, and the Manusmriti emphasize करते हैं importance of both rights and duties को for individuals and society. और जो concept of dharma है जो कि refer किया जाता है to the moral and ethical obligations of an individual towards society was central to this philosophy. So ये idea है that every individual जो है उसके पास एक certain rights है, but these rights जो है वो तभी कंपनी करेंगे जब वो अपनी corresponding duty मतलब जो उनकी ड्यूटी है वो फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे towards the community and society as a whole. तो जब अगर जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जब आप कहते हो कि हमारे को वुमेन्स की सिक्योरिटी चाहिए, अपनी गर्ल चाइल्ड की सिक्योरिटी चाहिए, डेट मीन्स कि आपकी भी एक ड्यूटी है कि आप भी दूसरे की गर्ल चाइल्ड को हार्म ना करो, एंड डेट मीन्स कि दूसरे को चाइल्ड को आप हार्म ना करो, तभी आपके बच्चे को जो कोई और हार्म नहीं करेगा, एंड डेट इज योर ड्यूटी कि आप पहले किसी और का कुछ काम नहीं करोगे तभी आपके साथ वो होगा. अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं तो दूसरे के साथ, दूसरे के बच्चे के साथ, किसी के साथ भी कुछ भी गलत कर सकता हूँ, और फिर आप चाहो नहीं मेरी मतलब लाइक मेरे मदर और मेरी डॉटर या मेरी सिस्टर्स के साथ कुछ ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता. So explain the fundamental duties mentioned in the Indian Constitution. So कौन कौन सी duties है fundamental duties जो कि mention है Indian Constitution में. So first of all, so Indian Constitution जो है वो include करता है list of 10 fundamental duties जो कि that are binding on all citizens of India. So जो कि सबके लिए है without like किसी की कोई भी caste हो, religion हो, gender हो, सबको ये duties follow करनी है. So ये duties है like जो these duties include respect for the Constitution, national symbols and institutions, promotion of harmony and spirit of common brotherhood among all the people, protection of the sovereignty, unity and integrity of India, and striving towards excellence in all spheres of individual and collective activity. Other duties include upholding the dignity of women, safeguarding public property, and showing compassion for all living creatures. So the fundamental duties were added to the Constitution in 1976 by the 42nd Amendment and were intended to promote a sense of social and civic responsibility among citizens. Next question we have is what is fundamental duty, and examine the view of the Supreme Court on duties. So the fundamental duties जो है वो एक moral, civic and ethical obligations है of every citizens of India. ये जो ड्यूटी है आर एनश्राइंड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये मत याद मतलब ये याद रखना कि आपको पेपर में अगर लिखोगे तो वो लिखोगे पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पार्ट 4, which was added by the 42nd amendment in 1976. So there are 11 fundamental duties. Previous वाले में 10 हमारे पास ऑप्शन था, but there is 11. So now we will see कि कौन कौन सी 11 fundamental duties we have that are aimed to promote the spirit of patriotism. Patriotism मतलब होता है कि आपको कंट्री की तरफ लाइक एक तरफ से फीलिंग होना कंट्री के लिए, and upholding the dignity of the nation. So the 11 fundamental duties are, so here first I will just give the like little spacing. First we have to abide by the constitution and respect its idol institution like national flag or national anthem. Next we have is to cherish and follow the noble idols that inspire the national struggle of India. Like जो आपके लिए लड़े थे शुरू में नेशनल फ्रीडम फाइटर्स, उनको एक फॉलो करना और उनको एक नोबल आइडियल मानना. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity. So ये आपको ये प्रमोट करना है एंड ऑल्सो इसको प्रोटेक्ट करना. Next we have is to defend the country and render national service when called upon to do so. तो एक तो कंट्री को डिफेंड करना मतलब कंट्री के अगेंस्ट में नहीं जाना, और दूसरा जब भी अगर कंट्री चाहे मतलब कंट्री जब आपको चाहती है कि आप कंट्री की हेल्प करो किसी पर्टिकुलर चीज में, तो आप उसके लिए मतलब सामने आओ, ये नहीं कि छुप के बैठ जाओ. नेक्स्ट you have is to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional and sectional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of women. So आपको एक तो शांति प्रमोट करनी है, ब्रदरहुड प्रमोट करना है, एक तो आपको और एक ये है कि आपको कभी किसी में लाइक लैंग्वेज वगैरह में डिफरेंस नहीं करना, रीजनल में डिफरेंस नहीं करना, और सबको सारी अपनी ड्यूटीज वगैरह जो है वो अच्छे से फुलफिल करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना. Next I will not like in the current situation I will not say कि not only women but for all the people, because ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि वुमेन की रिस्पेक्ट करना कि मतलब ये तो नहीं होता कि हम मेल की रिस्पेक्ट ना करो. That means कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए for every gender and for
every caste, every religion. Next you have is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Like हमारे पास ताजमहल है, इंडिया गेट है, लाल किला है, कुतुब मीनार है. So these are some of the like heritage जो कि हमारे को एक तो इन्हें preserve करना और इनकी value करना. Next you have is to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. तो आपको प्रोटेक्ट करना है, लाइक यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना है एक नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को और वाइल्ड लाइफ को, जो कि इस समय खत्म होती जा रही है. नेक्स्ट यू हैव इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. सो आपको यहाँ पे डेवलप करना है एक साइंटिफिक टेम्पर, मतलब कि ज्यादा ये नहीं होना चाहिए आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर एक अब लड़ने में आ गए बहुत ज्यादा. तो आपको कोई भी चीज आपको एक तो रिफॉर्म्ड रहना चाहिए, इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको जो चीजें पता होनी चाहिए एंड देन रिएक्ट टू दैट थिंग्स. नेक्स्ट you have is to safeguard public property and to observe something like that violence. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी को लाइक सेफ रखना है और सेफ गार्ड करना है. ये नहीं है जो आजकल के टाइम में होता है पत्थर वगैरह फेंकते हैं, वो नहीं होना चाहिए. एंड वायलेंस को जो है वो खत्म करना है या फिर वायलेंस नहीं क्रिएट करना. ऑल्सो कई बच्चे इसे में पूछेंगे कि क्या पेपर के लिए वीडियो लाइक कंप्लीट रहेगी. सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो. देखो अगर आप इस वीडियो को, मैं यही बोलूंगी, अगर आप इस वीडियो को 5 बार भी देख के चले गए ना, मैं आपको 100 के 201% गारंटी दे रही हूँ कि जितने का भी पेपर होगा आपका, उसमें से 70% मार्क्स आपके कंप्लीटली और पक्का आएंगे अगर सिर्फ आप ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख के चले आओगे. बट बाई चांस कई बच्चे चाहते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के बारे में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. नेक्स्ट वी हैव इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. तो आपको जो है लोगों को हेल्प करनी चाहिए इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, एंड मतलब लोगों के प्रति मतलब एक तरफ से कहते हैं ना एक अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए. Next you have is to provide opportunities for education to their children or wards between the ages of 6 to 14 years. So like आपको जो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है फॉर द एजुकेशन, ताकि आपके जो बच्चे वगैरह हैं लाइक वो जो है पढ़ सके लाइक टिल द एज ऑफ 14 years and between the age of 6 to 14. Next you have is no this one not yes. So next you have is जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ताकि वो क्लैरिफाई कर सके और एम्फेसाइज कर सके इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन द केस ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल जो रतलाम वी वारदी चंद है, जो कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनवायरमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर नॉट जस्ट मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस बट ये ऑल्सो एनफोर्सेबल ड्यूटीज है, जो कि कोर्ट ने ये भी स्टेट किया है कि जो ये ड्यूटीज है वो नेसेसरी है फॉर कमिटेंट ऑफ द राइट्स एंड सिटीजन्स एंड दैट दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर सोसाइटी. So with this we are ending this video here only. In conclusion I can say is फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड वो एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करती है ताकि वो प्रमोट कर सके स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, लाइक एक कंट्री के भावना, लाइक कंट्री के लिए भावना होना, नेशनलिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एम्फोसाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ड्यूटीज एंड हैज हेल्ड दैट दे आर एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस दैट आर नेसेसरी for the functioning of a democratic and secular society. And with this I will end this video here only. So all the best for exam and stay safe, stay positive. Explanation video वैसे तो I'm not planning to make, but अगर आपको चाहिए तो do let me know in the comments. If I will have the time I will make it. Also ये वीडियो अगर आप 5 से 6 बार देख लेते हो जैसे मैंने आपको बोला, तो आप आराम से 70% तो मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे. With this I would like to end this video here only. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना अगर लिंक दिया गया. बाय बाय.